حافظ قرآن بنایا ہے، وہی کبھی سورہ یاسین پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کبھی سورہ مزمل پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کبھی سورہ رحمان پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارا یہ عمل قبول فرما لیا تو اسی کے صدقے میں تمہاری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ تو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارو، اگر تم اپنے بچوں کو سدھارو گے آنے والی نسل تمہارے میں سدھار پیدا ہوگا۔ آج دیکھو نا مسجد تو بھی گیٹ پہ پٹاخے پھوڑتے، ڈھول بجاتے، ڈھول بجانا کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا برتھ ڈے؟ آج کی ایک برتھ ڈے میں نے عجیب دیکھا اس میں ڈھول بج رہا، مجھے مطلب یہ لگا کہ مطلب یہ غیر مسلم کا تہوار ہے تو وہ لوگ بجا رہے، کسی نے آ کے بتایا حضرت اس کا برتھ ڈے منائے، برا نہیں ماننا، میں آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ڈھول بجانا یہ نہیں ہے، اگر تم ڈھول بجا رہے ہو رات کے 12 بجے تم ڈھول بجا رہے ہو، تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تم ہی تو ذمہ دار ہو، تم تو اپنی مستی میں ناچ رہے ہو۔ تو اپنے بچوں کو وہ تربیت دو جو تمہارے بچے دنیا میں بھی اچھے عمل کریں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارے جانے کے بعد تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر ہے نا۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ ان سے پوچھو نا نماز میں کتنے فرائض انہیں نہیں معلوم ہوگا، ان سے پوچھو پب جی کے کیسے شرائط سب بتا دے گا۔ ہاں، اور ایک وہ کٹنگ وٹنگ کاٹتے ہیں یہاں سے، آج میں ساری باتیں بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ہمارے نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی، برا نہیں ماننا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ اگر عمل کر لیا نا تو دنیا بھی سلامت ہے اور آخرت۔ ایک کٹنگ نکلی ہے وہ اس کو بولتے ہیں کٹورا کٹنگ۔ ہاں، یہاں پر گنجا رہے گا اور بیچ میں گھونسلہ رکھ لے گا، اس میں چڑیا انڈا دے گی، گھونسلہ رکھ کے بیٹا۔ اللہ کے رسول فرماتے جس کسی نے ایسے بال کٹوائے سائٹوں سے خالی رکھتا ہے اور اوپر بال رکھتا ہے اس کے سر پر اللہ کی لعنت برستی۔ تم سوچ رہے ہو نا ہوا لگ رہی، ہوا نہیں لگ رہی، لعنت برس رہی ہے اس پہ۔ ہاں، تو وہ بال کٹواؤ، اچھی بات ہے، بال کٹوانا سنت ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو۔ ایک بادشاہ تھا، مجھے واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ علماء سے بڑی محبت کرتا تھا، غور سے سننا، آرام سے بتاؤں گا سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک بادشاہ علماء سے کیا کرتا تھا؟ بولو، محبت کرتا تھا، بولو محبت کرتا، بڑی عقیدت رکھتا تھا، علماء سے بڑا پیار کرتا تھا، علماء سے بہت پیار تھا اسے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک امام تھے، وہ بچوں کو مدرسہ پڑھاتے تھے۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جو امام ہے یہ میرے بچے کو بھی مدرسہ پڑھائے۔ وہ امام صاحب کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا حضور آپ جیسے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں میرے بچے کو بھی دینی تعلیم دیجیے، لیکن میری شرط یہ ہے آپ اور بچوں کو گھر پہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، میرے بچے کو آپ گھر پڑھانے آئیں گے کیونکہ میں بادشاہ ہوں نا۔ لیکن یاد رکھنا جو امام تھے وہ ایرے گہرے نہیں تھے، سنت رسول کے پابند تھے۔ جانتے ہو انہوں نے کیا آنسر دیا؟ اس کا کیا رپلائی دیا؟ امام فرماتے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھانی ہے تو یہاں مدرسے میں بھیجو اسے، تب میں اسے دینی تعلیم سکھاؤں گا۔ بہرحال بادشاہ نے بات مان لی، اور جب بادشاہ نے بات مانی اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیا، اس کا بچہ پڑھنے لگا، شہزادے پڑھ رہے، امام اور بچوں کو بھی پڑھا رہے، بادشاہ کی لڑکی کو بھی پڑھا رہے۔ ایک دن کیا ہوا، امام صاحب وضو کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بولو، وضو کر رہے تھے، اور جو بادشاہ کا بیٹا تھا امام صاحب اس سے اپنے اعضائے وضو پہ یعنی ہاتھوں پہ چہرے پہ پانی ڈلوا رہے تھے۔ وہ پانی ڈال رہا تھا، امام صاحب وضو کر رہے تھے، لیکن لوگوں بادشاہ بھی تو علماء کا محبت کرنے والا تھا نا، علماء سے عقیدت رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کا گزر ہوا، گھوڑے پہ سے دیکھا کہ امام صاحب اس کے بیٹے سے وضو کروا رہے، گھوڑے سے اتنا کوڑا نکالا، اللہ اکبر۔ دیکھنے والے تھے، دیکھنے والے سوچنے لگے آج تو امام صاحب کی خیر نہیں ہے، امام صاحب نے بادشاہ کے بیٹے سے کام لیا ہے، بادشاہ کے بیٹے سے کام کروایا ہے، بادشاہ کے بیٹے سے پانی ڈلوایا ہے، آج امام صاحب کی خیر نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو بادشاہ کوڑا لے کر کے آ رہا ہے، جو بادشاہ کوڑا لے کر کے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، علماء سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ سلامت، دنیا کا بادشاہ، علماء سے محبت رکھنے والا، بیٹے کی طرف کوڑا لے کر کے بڑھ رہا ہے۔ لوگ دیکھ لگیں گے آج امام صاحب کی خیر نہیں ہے، امام صاحب آج پٹیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے کیا دیکھا؟ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنی پیشانی کی نگاہوں سے کیا دیکھا؟ کیا دیکھتے ہیں؟ جو بادشاہ کوڑا لے کر کے جا رہا تھا، جو بادشاہ مارنے کے لیے جا رہا تھا، وہ امام صاحب کو نہیں مار رہا بلکہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، اپنے بیٹے کے اوپر کوڑے پہ کوڑے برسا رہا ہے۔ اے کورونا کے مسلمانوں، بادشاہ کے الفاظ سنو، بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ ارے ناہنجار بے ادب، یہ کون سا ادب ہے کہ تو دونوں ہاتھوں سے پانی ڈالنے لگے؟ ابے اس پاس کا ادب
जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये उसका उसका दम होता, एक हाथ से तू पानी डालता और दूसरे हाथ से उनके पैरों को धोता, ये कौन सा अदब है? तो ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। दीनी तालीम दो, फिर यही कहूंगा बहुत जरूरी, दीनी तालीम बहुत जरूरी है। दुनियावी तालीम कितने ही तुम डॉक्टर बना लो, कितनी साइंस की किताबें पढ़ा लो, कितनी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, सब यही रह जाएगा। दुनिया में सारी तालीम यही रह जाएंगी। दुनिया से जाने के बाद एक ही तालीम है जो तुम्हारे बच्चे के साथ जाएगी, उस तालीम का नाम है दीनी तालीम। इसी तालीम का नाम दीनी तालीम है। तो अपने बच्चों को सुधारो, अपने घर का माहौल सुधारो, अपने घर का माहौल ऐसा करो जब तुम्हारी बेटियां सुबह में उठे तो वो कुरान पाक की तिलावत करे, तुम्हारे बच्चे सुबह में उठे फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाए और तुम्हारे बच्चे फजर की नमाज पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर तुमने अपने घर के माहौल को सुधार लिया, अपनी बेटियों के किरदार को सुधार लिया, अपने बच्चों के अखलाक को सुधार लिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे करीम बहुत बड़ा गफूर रहीम में तुम्हारे कामों में भी बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमारी बेटियां देखो, अगर 10 साल की बेटी है, बड़ा नहीं मानना, 10 साल की बेटी, इतना बड़ा मोबाइल उसके हाथ में देखने को मिलेगा, इतना बड़ा मोबाइल देखने को मिलेगा, इतना बड़ा बच्चा यही रोड पे खेल करके मोबाइल चलाएगा, गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतने नन्हे नन्हे बच्चे गंदी गंदी गालियां देंगे। यार ये गाली देना हमारे काम है, हम तो आशिक रसूल हैं। ऐसे काम करें जहां बैठे वहां माहौल लग जाए कि आशिक रसूल की महफिल है, जहां आशिक रसूल बैठे चले तो ऐसा लगे लोग कहे वो देखो आशिक रसूल जा रहा है। लगता ही नहीं हम नबी की चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु। आज हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना, अगर हमें कोई एक गाली देना तो हम उसे 10 गाली देते हैं, हमें उसको, लेकिन वो नबी कुर्बान जाओ उनकी जात पर, ताइफ के बाजारों में जब उन पर पत्थर बरसाए गए ना, वो नबी थे, चाहते तो पूरी कौम को, तभी इन्होंने बताया भी था शायद नाज शरीफ में, चाहते तो पूरी कौम को तबाह भी कर सकते थे, लेकिन नबी थे, उन्होंने गालियां खा करके दुआएं दी हैं। तो उन्होंने ये दुआएं दी कि कोई तुम्हारा अगर दिल दुखाए तो तुम मजलूम बन जाना, लेकिन जालिम कभी मत बनना, सबर कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, सबर का फल बहुत मीठा होता है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ऐ लोगों, अपने बच्चों को सुधारो। एक वाकया मेरी ज़हन में और आता है, एक 12 साल का बच्चा हजरते हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला, उनका दौर था, उनके दौर में एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है हुजूर, और हाँ उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में क्या थे बोलो? आंसू। वो रो रहा था। लोगों ने देखा हुजूर ये क्यों रो रहा है? ये तो वो आदमी है कि इसके दिल में रहम नाम की चीज ही नहीं, जुआ इसका काम, शराब पीना इसका काम, और ये इसके सामने अगर कोई गरीब तड़प के मर जाए तो ये इसके दिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हुजूर इसका दिल तो काला हो चुका है, ये क्यों रो रहा है? बीबी अजमी ने इरशाद फरमाया तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा हुजूर मैं आपकी बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ। क्या कहा उसने? तौबा करना चाहता हूँ। जोर से बोल। तौबा करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ। हबीब अजमी ने कहा तू तो बहुत बड़ा खताकार है, सियाकार है, बदकार है। लोगों ने कहा कि इसका तौबा करना ऐसे ही है जैसे गुंबद पे अखरोट रखना, जैसे गुंबद पे अखरोट नहीं रुक सकता, तो ये तौबा क्यों कर रहा? हबीब अजमी ने इरशाद फरमाया तू अपनी तौबा का वाकया बता। ऐ लोगों, इस वाकये को सुनोगे ना इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, दिल दहल जाएगा। वो शख्स जो दिनों रात जुआ खेलता था, दिनों रात शराब पिया करता था, बुरे कामों को किया करता था, वो अपना वाकया बयान करता है, हुजूर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं अपने घरों पे 10 दोस्तों को पार्टी दूंगा। क्या दूंगा? पार्टी, दावत करूंगा। उसकी बीवी ने लंबी फहरिस्त बना करके दे दी कि जाओ बाजार से फला सामान लेकर के आओ। और जब वो बाजार गया सामान लेने के लिए, दुकान पे जाकर के उसने सामान लिया, पोटली ज्यादा थी, सामान ज्यादा था, तो उसे बोझ उठाने वाले की जरूरत पड़ी, बोझ उठाने वाले की जरूरत पड़ी। उसे तलाश थी कि उसका कोई बोझ उठा करके ले जाए। वो आदमी कहता है हुजूर मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ था, अल्लाह अकबर, चेहरे पे उसके नूर था, सुभान अल्लाह। दूर से देखने में लग रहा था, दूर से देखने में लग रहा था कि इसकी माँ ने इसे बहुत अच्छी तरबियत दी है। हुजूर मुझ पे उलमाए कराम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बच्चा कोई दारुल उलूम पढ़ा हुआ नहीं था, कोई मदरसा पढ़ा हुआ नहीं था, कोई मकतब पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि
अपनी माँ की तरबियत में ढला हुआ, उसकी माँ ने उसे ऐसी तरबियत दी थी। अल्लाह अकबर। वो शख्स उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से पूछता है, बेटे तुम बहुत बड़े घराने से लगते हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही है कि तुम बहुत बड़े घराने से हो, ए बेटे तुम क्यों यहाँ पर खड़े हो? जानते हो उस बच्चे का जवाब क्या था? 12 साल का बच्चा, लोगों जुमले पे गौर करना, 12 साल का बच्चा जवाब देता है कि मैं मजदूर हूँ, बोझ उठाने के काम करता हूँ, मुझे बोझ उठाने का काम है और मुझे मजदूरी की तलाश है। कितने साल का बच्चा है बोलो? 12 साल का बच्चा। और वो बोलता है कि मैं 12 साल का हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरी माँ घर में अकेली रहती है, उसका खर्चा मैं ही उठाता हूँ। अल्लाह अकबर। आदमी ने पूछा कि तुम मेरे बोझ उठाने के कितने रुपए लोगे? तो लड़का कहता है कि मैं आपके बोझ उठाने के 3 दीनार लूंगा। कितने दीनार? 3 दीनार लूंगा। उसने कहा कि 2 दीनार ले लेना। बोला नहीं, मैं 3 ही दीनार लूंगा, क्योंकि मेरे जो घर का खर्च होता है वो 3 दीनार में पूरा हो जाता है। मेरी माँ ने मुझे 3 दीनार देने के लिए कहा, लेने के लिए कहा है। तो उसने कहा ठीक है तुम मेरा बोझ उठा लो। अल्लाह अकबर। जब वो बोझ उठाता है, बच्चे की उम्र कम थी, बच्चे का काम ज्यादा था, वो आदमी कहता है कि मैं बच्चे को देख रहा था, बच्चा बोझ लेकर के चला जाता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चे तुम 3 दीनार कमाते हो, 3 दीनार तुम आधे दिन में भी कभी कभी कमा लेते होगे, कभी 8 घंटे में कमा लेते होगे, जो तुम्हारा खाली वक्त बचता है फिर तुम क्या करते हो? ऐ कुरला के मुसलमानों, बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा क्या कहता है? मियां अगर मेरा काम सुबह 2 घंटे में हो जाता है तो मैं वो 3 दीनार लेके घर वापस चला जाता हूँ, जो बाकी का टाइम बचता है अपने रब की इबादत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने साल का बच्चा? 12 साल का बच्चा। अभी और सुनो, जवाब सुनो। बोलता है कि अगर मेरा काम सुबह 8 बजे हो गया तो शाम तक मैं अपने रब को याद करता हूँ। क्या मेरे खर्चे का काम हो चुका है, मेरे खर्चे का काम हो गया। अल्लाह अकबर। वो आदमी कहता है, हुजूर मेरे दिल की कैफियत बदल गई, बच्चे के कदम डगमगा रहे, बच्चा बोझ रखते हुए सर पे चल रहा है, बच्चे की उम्र कम है, बोझ ज्यादा है, और जब वो लेकर के बच्चा चलता है, चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है। मैंने उससे पूछा, क्यों बेटा थक गए, थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, तो थोड़ा सा आराम लेना चाहते हो? बच्चे का जवाब सुनो। बच्चे ने क्या किया? ना तो मेरी सांस फूली है, ना ही मैं आराम करना चाहता हूँ, ना ही मुझे थकावट महसूस हुई है। ऐ इंसान, क्या तुझे अजान की आवाज नहीं आई? मैं अपनी नमाज पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कितने साल का बच्चा? 12 साल का बच्चा, बोझ उठाना, मजदूरी का काम कर रहा। और देखो उसकी हिम्मत, देखो बोझ रख दिया। बोलता है कि जब नमाज का टाइम हो जाता है तो मैं अपने काम को रोक देता हूँ, पहले रब की इबादत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो इंसान कहता है कि, तो बच्चा जानते हो उस इंसान से क्या कहता है? बच्चा कहता है कि अगर तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुझ पर गिरा गुजर रही है तो तू ऐसा करना, मुझे 3 दीनार के बदले 2 दीनार दे देना, लेकिन मुझे मेरे रब की इबादत कर देना। सुभान अल्लाह। कितने साल का बच्चा? 12 साल का बच्चा। 3 दीनार उसकी मजदूरी, फिर भी उसकी हिम्मत देखो। बोलता है अगर तेरे दिल पर ठेस पहुंचेगी तो तू 2 ही दीनार देना, लेकिन मुझे तू नमाज पढ़ दे, बस अपने रब की इबादत कर ले। 12 साल का बच्चा मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, वुजू करता है, सिर्फ फर्ज पढ़ करके वापस आ जाता है, फर्ज पढ़ करके वापस रिटर्न आता है। आदमी पूछता है, बेटा इतनी जल्दी वापस क्यों आए? बच्चा कहता है कि तू तो मेरा मालिक है, तेरा भी नहीं दिल दुखना चाहिए, मैं फर्ज पढ़ के आया हूँ, सुन्नत और नफिल घर जा करके पढ़। मसला भी यही है। क्या आप अगर मस्जिद में जाए, मस्जिद में सवाब ज्यादा है पढ़ने का, लेकिन आप अगर मतलब तूफान ज्यादा है, बारिश, तो आप सुन्नतें अपने घर से पढ़ के जा सकते हैं, नफिल नमाज भी आप घर पे पढ़ सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं नेक काम करता हूँ, मेरा दिल साफ है, मैं दिल का साफ हूँ, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता, तेरा टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता, मेरा काम हो चुका है, चल तू अब मुझे कहाँ लेकर के जाएगा? अल्लाह अकबर। वो आदमी जब उस बच्चे को लेकर के जाता है और उस बच्चे को लेकर के जाता है, तो उस बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसी तरबियत दी है कि जब मैं 3 दीनार लेकर के अपने घर वापस जाता हूँ तो मेरी माँ कमाई का हिसाब बाद में पूछती है, पहले पूछती है बेटा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सुभान अल्लाह। अगर ऐसी माँ हो तो फिर बच्चा कैसा हो? ऐसी अगर माँ हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि माँ का भी किरदार ऐसा होना चाहिए। अब माँ खुद 10 बजे सो के उठ रही है तो क्या उसकी लड़की नमाज पढ़ेगी? क्या उसका बेटा फजर की नमाज पढ़ जाएगा? माँ ही जब 10 बजे सो के उठ रही है। लेकिन बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसी तरबियत दी है कि जब मैं घर पे कमा करके जाता हूँ तो मेरी माँ ये नहीं पूछती बेटा काम हुआ कि नहीं हुआ, पूछती है नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी।
नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वो आदमी लेकर के जाता और उसका दिल और मोहब्बत पैदा हो रही बच्चे की। हालांकि अभी उसने तौबा नहीं किया, अपना वाकया बता रहा हबीब अजमी को। हाँ, और जब वो घर पे पहुंचता है तो टोकरी लेकर के अपने घर में जाता है, अपनी बीवी से कहता है आज एक मुबारक बच्चा मेरे हाथ आ गया। उस बच्चे की कैफियत ऐसी है कि उसने सारा वाकया बताया कि ऐसे ऐसे नमाज पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ये कर रहा है, तो उसकी बीवी का भी दिल मचल गया। सुभान अल्लाह। उसकी बीवी कहती है ऐसा करो, इस बच्चे की दावत करो, आज ये बच्चा हमारे घर से खाना खा करके जाएगा। तो वो आदमी आता है, उस बच्चे से कहता है बेटा मेरी बीवी की ये ख्वाहिश है कि आज का खाना तुम हमारे घर पे खा करके जाओ। ए कुर्ला के मुसलमानों, उस बच्चे का जवाब सुनो, कसम खुदा की बता रहा हूँ, अल-मुख्तार का दावा है, जवाब सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, दिल दहल जाएगा। वो बच्चा जो धूप की सख्ती में बोझ उठा करके लाया था, जब उस आदमी ने खाने का सवाल किया